अखिल तेलुगु टीम के कप्तान सेकंड ओवर की शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं वापस, समय लेते हुए अपना ग्राउंड और अपनी फील्ड सेट करने में। इसी बीच में थोड़ा सा हमें भी समय मिला है कि हम बाकियों को भी समय दें सेटल होने का, इसलिए कमेंट्री टीम थोड़ी सी बदलाव करती हुई। और अब अजय मेहरा और रोहन गवास्कर आपके साथ अगले 5 ओवरों के लिए। थैंक्स लॉट अंजुम। 63 पे 2 बंगाल टाइगर्स। 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। औसत अगर आप देखें अब 6 से ऊपर की। जिशु और जॉय अभी क्रीज पे। दोनों जे के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दोनों बेहतरीन बैट्समैन है। एक अच्छा लॉन्चिंग पैड बंगाल टाइगर्स के लिए। पर महत्वपूर्ण बात यही है कि अब अगले 10 ओवर में कितने रन बना पाएंगे और क्या टारगेट दे पाएंगे तेलुगु वॉरियर्स की टीम को। बहुत ही बढ़िया लाइन चकमा दिया। At the moment we'll go down to Galen, who's standing by the boundary side. Well, it's getting quite cold here in Hyderabad, but to help me raise the temperature, I have the very beautiful brand ambassador of the Bengal Tigers, Payal. Firstly, welcome Payal. First game for the Bengal Tigers. I don't just hit a 6 right there. Tell me, how excited are you to watch your team play here for the first time at the CCL? First of all, a very good evening to everybody, and it's Hero Cycle Bengal Tigers, and I'm very happy to be here because they are playing really well this time. And you know what, the first match is always very crucial. You know, it sets you, actually it sets your mood, it sets your temperament. So I guess, you know, they are doing fine. I mean, just hope for the best that they win this match. Absolutely, you said it absolutely right when you said it sets the tempo in a way. Well, the boys are working really hard out there, and I'm sure you guys from right here are really cheering them on. So tell us a little more about the support that you guys are giving them. So we are supporting them, obviously that's why we are here. And you know, just, you know, like these guys, I want to tell you one thing, that these guys are really passionate about cricket. I mean, you can see them. Actually, you know, like, you know, that energy, that passion is there with everyone. So I guess, you know, this time they really win. I'm sorry, what do you think? Do actors make good cricketers? Just a candid question. What do you think? Why not? If you're passionate about something, you'll do good, right? And all the Bengal Tigers are pretty passionate out here, isn't it? Yeah, Bengalis are passionate about sports. So cricket is, I guess, is the most popular sports within Bengalis. So finally, these Bengal Tigers, I guess, they are doing fine this time. They're doing fine. We can't help but notice that the Telugu Warriors have a lot of home support here. Do you think that's going to work in their favor, or they're going to put a lot of pressure on the team? No, I think, you know, like, yes, a match in a home ground is a different thing altogether. But, you know, once you are, like, you are there, like, you are, I mean, you have decided, you know what you want to do. I mean, it's fine. If it's, whether it's a home ground or it's not, doesn't matter. Doesn't matter. Thank you very much, Payal. For now, it's over to commentary. तो रन आते हुए बंगाल टाइगर्स के लिए, और ये उनके लिए अच्छी खबर है। औसत अगर आप देखें अब 7 से ऊपर जाती हुई, और ये ओवर काफी बढ़िया साबित हुआ है। 13 रन आते हुए 5 गेंदों में। मुस्कुराते हुए यहाँ पे जिशु जो कप्तान भी है। पिछली गेंद पे अंदरूनी किनारा, लाइन बहुत बढ़िया थी। अखिल द्वारा पर अंदरूनी किनारा, बाल बचे पर महत्वपूर्ण बात, 4 रन आए। इस बार उठा के खेला है, बहुत ही बढ़िया प्रहार और मैक्सिमम 6 रन। बेहतरीन ओवर साबित होता हुआ बंगाल टाइगर्स के लिए। 19 रन आए 82 में 2। जॉय ने अच्छा कार्य किया है, हालांकि कई बार भाग्य ने उनका साथ दिया। 41 में बल्लेबाजी करते हुए 31 गेंदों का सामना किया है। और जिशु जब से आए हैं ऐसा लग रहा है मैन ऑन अ मिशन। 21 रन में पहुंच चुके हैं, 8 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। और इस जोड़ी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी।
32 रनों की साझेदारी हो चुकी है जॉय और जिशु के बीच में, और मात्र 15 गेंदों में नंद किशोर दाहिने हाथ के मीडियम पेस गेंदबाज पार्ले जी एंड से आते हुए। रोहन, एकदम पूरे मुकाबले का जो रुख है वो बदल चुका है। सही कह रहे हो आप अजय, एकदम बदल चुका है। ये साझेदारी 32 रन की सिर्फ 15 गेंदों में, इस साझेदारी ने रूप बदल दिया है। कहना पड़ेगा कि जब से जिशु आए, कप्तान आए हैं, उन्होंने जो मोमेंटम की जरूरत थी इस इनिंग में, वो मोमेंटम दिला दिया है। उनके स्ट्राइक रेट पे एक नजर डालो, 260 के ऊपर, 8 गेंदों में 21 रन, 1 चौका 2 छक्के। ये छक्का को देखिए। बंगाल की टीम खुश, उन्हें पता है कि ये एक अहम साझेदारी हो सकती है। ये जिशु की बात करें, छक्के ज्यादा लगाए हैं और चौके कम, 2 छक्के लगा चुके हैं और मात्र 1 ही चौका लगाया है। ये उनमें क्षमता है। हमेशा एक बहुत ही भरोसेमंद बल्लेबाज है, हमेशा बतौर कप्तान आगे से लीड करते हैं, बढ़िया टेक्निक है। नहीं, क्रिकेट खेलते थे पहले जिशु, तो क्रिकेट की जो आइडिया कहते हैं वो आइडिया है उनमें, कैसे खेलना है, किस तरह से रन बनाने हैं, कब सिंगल लेना है, कब अटैकिंग खेलना है, कब आक्रामक बल्लेबाजी करना है, कब थोड़ा धीरे से पार्टनरशिप बनाना है, वो आइडिया है उनमें। इस बार फिर से उठा के खेला है और वही बल्लेबाज जिसका रोहन जिक्र कर रहे थे, वही मौका नहीं गंवा रहे। एक बार फिर मैक्सिमम 3 छक्के लगा चुके हैं और मात्र 1 ही चौका, और स्ट्राइक रेट लगातार बढ़ता हुआ 280 का स्ट्राइक रेट। 15 मिनट हुए क्रीज पे आए और ऐसा लग रहा है तूफान आ चुका है हैदराबाद में। तूफान बे ऑफ बंगाल के यहां से। और ये देखिए आज क्या खा के आए हैं, इतनी दूर से तूफान आया है और ये रुकने वाला नहीं है। कोई भी गेंदबाज हो, कहीं भी गेंद करे, जिशु प्रहार करते ही रहेंगे। और देखिए, अगर आप तेलुगु वॉरियर्स के ड्रेसिंग रूम पे एक नजर डालो तो गंभीर चेहरे, 2 लगातार छक्के, इस ओवर में 15 रन आ चुके हैं। और हमने देखा था अजय पहली गेम में कि आसान नहीं है इस सतह पे रन बनाना। ये तो ऐसा लग रहा है बंगाल टाइगर्स एक बहुत ही बढ़िया टारगेट देगी। 12 ओवर की समाप्ति 98 पे 2। अभी जो औसत चल रही है 8 से ऊपर की बंगाल टाइगर्स के लिए, 163 यहां से प्रेडिक्टेड स्कोर होता है। पर जब तक जिशु है कुछ भी कहना सही नहीं, क्योंकि जिस फॉर्म में है, जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं और जो सोच अभी तक रखी है, जरूर दबाव डालेगी तेलुगु वॉरियर्स की टीम के ऊपर। यही कारण अब आक्रमण ने बदलाव किया है। सचिन जोशी आते हुए 2 ओवर में 10 रन, लगभग 1 विकेट उनको मिल गई थी जब बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा था, और वो था जॉय के बल्ले से जब कैच निकला था और वो नो बॉल घोषित हुई थी। और ये सही रणनीति, सचिन जोशी अनुभवी गेंदबाज है, 2 ओवर में उन्होंने 10 रन दिए थे तो अच्छी गेंदबाजी की थी। तो ये जो साझेदारी है इसको तोड़ना है, तो सही रणनीति। सीधे बल्ले से खेला, 1 रन तो जरूर मिलेगा।
अच्छे भागे और 2 रन। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। बिल्कुल माहिर नजर आते हैं जॉय भी, जिशु भी इस प्रकार के खेल में, क्योंकि दबाव डाल रहे हैं फील्डिंग साइड के ऊपर। 50 रनों की साझेदारी हो चुकी है जॉय और जिशु के बीच में मात्र 23 गेंदों में, और इसी की दरकार थी बंगाल टाइगर्स की टीम को। निश्चित तौर पे अब तेलुगु वॉरियर्स के ऊपर दबाव बढ़ता हुआ। 50 रन की साझेदारी से मैं कह रहा था 23 गेंदों में जिशु 37 पे पहुंच चुके हैं और केवल 14 गेंदों का सामना किया है। जॉय हमने थोड़ा वक्त लिया है। सचिन जोशी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, और सबसे बढ़िया चीज रोहन, आप भी बाएं हाथ के स्पिनर थे, मुझे अच्छी लगती है कि बहुत ही सरल एक्शन है, बहुत बढ़िया रनअप है क्रीज को, और बहुत बढ़िया उनका एक्शन है। उनका गैदर जब क्रीज तक आते बहुत ही अच्छा गैदर। देखिए अपील और आउट। रणनीति सफल अजय। वो चाहते थे कि विकेट हासिल करें और वो विकेट निकाल के ही दिया। हम रोहन तारीफ ही कर रहे थे उनके एक्शन की, और देखिए कितनी बढ़िया सोच थी सचिन जोशी द्वारा। गेंद को आगे रखा, हालांकि ऐसा लग रहा है रेफरल का प्रयोग करना चाहते हैं। जॉय ज्यादा खुश नहीं है, जिनको लेग बिफोर विकेट आउट दिया गया है, और शायद जिशु भी उससे सहमत थे, और बहुत दिलचस्प रहेगा। पर मुझे ऐसा लगा कि सामने है, क्योंकि जब गेंद स्ट्राइक की पैड को, मुझे लेग स्टंप नजर आ रही थी, पर थर्ड एम्पायर का क्या निर्णय है ये अब देखने की बात रहेगी। रिव्यू किया है, सबसे पहले देखना होगा क्या नो बॉल तो नहीं है। नो बॉल तो नहीं है, लीगल डिलीवरी। अब हो लगता है कि आउट। बिल्कुल गेंद मैट पे पड़ी है और पिछली पांव में लगी है, मुझे लग रहा है कि स्पष्ट आउट है, कोई भी दुविधा नहीं होना चाहिए। और जी हम आउट करार करते हुए, तो ये जो रिव्यू है सफल नहीं रहा बंगाल टाइगर्स के लिए, पर सचिन जोशी को अपनी पहली विकेट मिलती हुई। 101 पे 3 बंगाल टाइगर्स। एक अच्छी पारी समाप्त होती हुई जॉय की 43 पे आउट हुए, 34 गेंदों का सामना किया, 101 पे 3। सैंडी है नए बल्लेबाज, ये भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं। और इस तरह से जॉय आउट हुए। स्वीप करने की कोशिश, प्लम इन फ्रंट, कदमों का प्रयोग, डॉट बॉल। बेहतरीन ओवर की समाप्ति, 3 रन और 1 विकेट इस ओवर में, 101 पे 3।
बहुत ज्यादा विकल्प नजर आ रहे हैं तेलुगु वॉरियर्स के पास। 7 गेंदबाजों का प्रयोग किया है प्रिंस सचिन जोशी और अकिनेनी को अभी तक सफलता मिली है। एक एक विकेट। फिर से उठा के खेलने का प्रयास किया यहाँ पे विकेट और जिया 2 ओवर में दोनों ही सेट बल्लेबाज आउट होते हुए मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ पे बंगाल टाइगर्स के लिए और एक बार फिर इस मुकाबले ने करवट ली है। मिड विकेट के ऊपर से मारने की कोशिश कप्तान जिशु की और देखिए वापस कोई शक नहीं अंपायर के मन में, अंपायर सदानंद विश्वनाथ। और तरुण ने जिशु का विकेट निकाला 101 पे 4। नए बैट्समैन क्रीज पे इंद्रशीष, शायद तरुण ने सबसे बड़ी विकेट ली है अपनी टीम के लिए जब जिशु को लेग बिफोर आउट किया है। और उससे जो पूरा मुकाबले का जो रुख है एक बार फिर बदलता हुआ। इंद्रशीष और सैंडी अभी क्रीज पे बंगाल टाइगर्स के लिए। और एक बार फिर गेंद घूमती हुई सवाल पूछा और ऐसा लगा इस बार हाइट ज्यादा थी और ये कारण एम्पायर सदानंद विश्वनाथ ज्यादा प्रभावित नहीं। और ये थी जो बड़ी विकेट थी। जिशु पूरी तरह सेट हो चुके थे, क्रॉस लाइन खेलने का प्रयास किया और एक बार फिर गेंद पिछले पांव में लगती हुई। फाइन लेग की दिशा में 1 रन। अब रन बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। जो 2 सेट बल्लेबाज थे वो आउट। वापस पवेलियन में 2 नए बल्लेबाज सैंडी और इंद्रशीष मैदान में। यहां से अगर अब बंगाल टाइगर्स 130-140 बनाती है तो कहना पड़ेगा कि ठीक ठाक स्कोर होगा। आसान नहीं है इस सतह पे रन बनाना। क्या रोहन, जब जॉय और जिशु बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था 170 भी अचीवेबल है। जिस अंदाज से वो खुल के खेल रहे थे, शॉट्स लगा रहे थे, 5 छक्के अभी तक लग चुके हैं इस इनिंग्स में। एक बार फिर इस मुकाबले ने करवट ली है। वो कारण है जिस बार तरुण को 1 विकेट मिली। इससे पूर्व जो ओवर डाला सचिन जोशी ने, उनको विकेट मिली। एकदम बदलाव आया इस मुकाबले में। ये क्या बढ़िया ओवर, 2 रन ही खर्चे, 1 सफलता मिली है तरुण को। फिर से चकमा दिया, बेहतरीन ओवर की समाप्ति। 14 ओवर के बाद 103 पे 4। सचिन जोशी जो भी गेंदबाजी कर रहे हैं, उनकी एक बहुत ही बढ़िया पहल बिग ब्रदर फाउंडेशन हर रन के लिए 1000 रुपए डोनेट कर रहे हैं इस सीसीएल के संस्करण में। 100 हार्ट फाउंडेशन को ये पैसे देते हैं।
तो बड़े भाई अपने छोटे भाई का देखभाल कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा रोहन, और बहुत ही बढ़िया सोच है। जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो बचपन से ही पीड़ित रहते हैं हार्ट की बीमारी से, उनकी देखभाल के लिए बहुत ही बढ़िया पहल बिग ब्रदर फाउंडेशन द्वारा। और यहां पे सफलता मिलती हुई, आज तो कमाल ही कर दिया सचिन जोशी ने। पहले उनकी फाउंडेशन बढ़िया कार्य कर रही है और उनकी जो गेंदबाजी है वो जौहर लेके आ रही है। क्या गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी। देखिए सही टप्पे पे आर्म बॉल, मिडिल स्टंप बाहर। उनको पता ही था कि विकेट मिलने ही वाला है। तेलुगु वॉरियर्स की टीम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और क्यों ना करे। इंद्रशीष 1 रन बना के आउट, 104 पे 5। काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले इस मुकाबले में, और यहां पे फुल टॉस पर सीधा हाथ में। एक और सफलता मिलती हुई सचिन जोशी को। नो बॉल का शायद क्या इशारा होगा यहां पे। कैच बहुत बढ़िया पकड़ा है डीप में। हालांकि तेलुगु वॉरियर्स की टीम अभी सेलिब्रेट कर रही है, पर क्या ये नो बॉल थी? मुझे लग रहा है शायद एक बार फिर रिव्यू लिया जाएगा। पर जो कुछ भी है, बंगाल टाइगर्स की टीम गहरे समस्या में नजर आती हुई। रोहन, चारा ज्यादा नहीं है बंगाल टाइगर्स के पास। मुझे लगता है रेफर तो लेंगे, पर क्या ये नो बॉल थी, वो एक बड़ी बात है। जी देखना पड़ेगा। अंपायर का क्या निर्णय है देखना पड़ेगा भाई। कौन अंपायर बनेगा, इतना मुश्किल काम। जी मेरे हिसाब से गेंद डिप कर रही है, और अंपायर का निर्णय होना चाहिए कि ये आउट। और देखिए सही निर्णय अंपायर का। जैसे हम कह रहे थे कि आउट होना चाहिए, अंपायर ने आउट दे दिया। बिना रन बना के राजा आउट। 104 पे अब 6। सारी नजरें सचिन जोशी के ऊपर। हैट्रिक बॉल, क्या हैट्रिक मिलेगी? सुमन नए बैट्समैन बिल्कुल सीधे बल्ले से खेलते हुए बहुत ही सावधानी के साथ। क्या ये गजब का अभी तक ओवर रहा है। दबाव डाल के रखा है बैट्समैन के ऊपर।
इस तरह से राजा आउट हुए, फुल टॉस का फायदा नहीं उठा पाए राजा। रोहन, बड़ी बात है 101 पे, जैसे आप भी कह रहे थे, 101 पे 2 विकेट का पतन हुआ और अब 105 पे 6 विकेट गिर चुके हैं बंगाल टाइगर्स के। तो एकदम अगर आप देखें 4 बैट्समैन बहुत जल्द आउट हुए हैं, जी कारण टीम काफी दबाव में। इस बार अक्रॉस लाइन खेलने का प्रयास, बेहतरीन ओवर की समाप्ति, 2 विकेट लिए सचिन जोशी ने इस ओवर में, 105 पे 6। सैंडी अभी 2 पे, सुमन अभी भी आए हैं। मुसीबत घेराती हुई हमें बंगाल टाइगर्स के लिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी लगभग 4 रन के अंदर उन्होंने 4 विकेट खो दिए हैं। 15 ओवर की समाप्ति के बाद बंगाल टाइगर्स 105 में